प्यारे बच्चों, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ +2 ਦੇ ਲੈਸਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਥਿਊਰੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡੀਜੈਨਰੇਟ ਆਰਬਿਟਲਸ। ਡੀਜੈਨਰੇਟ ਆਰਬਿਟਲਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਦ ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੈਵਿੰਗ ਸੇਮ ਐਨਰਜੀ। ਇਸ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਤੇ ਇੱਕ ਲੀਗੈਂਡ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਖਾਲੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੀਗੈਂਡਸ ਆਪਦੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬੌਂਡਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਲੀਗੈਂਡਸ ਮੈਟਲ ਆਇਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਲੀਗੈਂਡਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਬਿਟਲਸ lying in the direction of ligands experience greater repulsion due to which energy is raised। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਲੀਗੈਂਡਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਬਿਟਲਸ lying away from approach of ligands experience lesser repulsion and their energy is lowered। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੈਨਰੇਟ ਆਰਬਿਟਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਮ ਸੀ, ਲੀਗੈਂਡਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਦੋ ਸੈਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ 5 ਹੁੰਦੇ ਆ, dxy, dyz, dxz, dx2y2 and dz2। ਜਦੋਂ ਲੀਗੈਂਡਸ ਇਹਨਾਂ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਆਰਬਿਟਲ ਦੀ ਅਤੇ ਲੀਗੈਂਡਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ dx2 ਤੇ dx2y2 ਐਂਡ dz2 ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ dxy, dyz ਤੇ dxz ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਐਨਰਜੀ ਵਾਲੇ ਡੀਜਨਰੇਟ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦਾ ਦੋ ਸੈਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਝ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ। Therefore, crystal field splitting is defined as conversion of 5 degenerate d orbitals of metal ion into different set of orbitals having different set of orbitals having different energy in the presence of electric field of ligands। electric field ਜਿਹੜੀ ligands ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੈਨਰੇਟ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਟਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ dxy, dyz, dzx ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ T2g ਆਰਬਿਟਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ज़्यादा हो जाती है dx2 y2
dz square ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ Eg orbitals ਕਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੇ T2g ਤੇ Eg orbitals ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਊਰਜਾ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਐਨਰਜੀ। Therefore, crystal field splitting energy is defined as the energy difference between two sets of energy levels. It is called crystal field splitting energy and it is denoted by delta naught। ਹੁਣ ਜਦੋਂ d orbitals ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ T2g ਤੇ Eg orbitals ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ T2g orbitals ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2/5 ਡੈਲਟਾ ਨਾਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ Eg orbitals ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ 3/5 ਡੈਲਟਾ ਨਾਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ 3/5 + 2/5 is 1 ਤੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਲਟਾ 0 ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ T2g ਤੇ Eg orbitals ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਰੂਲ। ਬਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਰੂਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ d orbitals ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ એનર્ਜੀ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। Crystal field splitting occurs in such a way that average energy of d orbitals does not change। ਜਿਹੜੇ ligands crystal field splitting ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ligands crystal field splitting ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ weak field ligands। weak field ligands ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ d orbitals ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੈਟਸ ਵਿੱਚ ਤੋੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਪਾਉਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਘੱਟ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। Therefore, weak field ligands are the ligands which cause small degree of crystal field splitting। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ligands ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ strong field ligands। strong field ligands ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ crystal field splitting ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। strong field ligands are the ligands which cause large degree of crystal field splitting। crystal field splitting એનર્ਜੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ligands ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਵੇ ਜਿਹਦੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਘੱਟ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਸਟੀਰੀਓਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼। Therefore, stereochemical series is an arrangement of ligands according to increasing order of crystal field splitting। different ligands ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ arrangement ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ I negative, Br negative, SCN negative, Cl negative ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ I negative ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ H2O ਤੱਕ ਦੇ ligands ਨੇ ਇਹ weak field ligands ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਘੱਟ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ NCS ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ CO ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ligands ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ligands ਕਹੀਦੇ। ਵੀਕ ਫੀਲਡ ligands ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਘੱਟ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ligands ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ दो तरह के ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। एक ਹੁੰਦੇ ਆ लो स्पिन ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ, दूसरे ਹੁੰਦੇ ਆ हाई स्पिन ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ। जिस तरह असी हाई स्पिन ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਤੇ गौर करिए, ਜਿਹੜੀ एनर्जी है वो दो तरह की ਹੁੰਦੀ है। ਜਦੋਂ डी ऑर्बिटल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਭਰੀਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ 5 डी ऑर्बिटल्स ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੁਣਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ T2G ऑर्बिटल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 4th ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਹੈ ਉਹ ਹਾਇਰ ਸੈਟ ਆਫ ऑर्बिटल्स EG ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਸਪਲਿਟਿੰਗ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਅਰਿੰਗ ਲਈ ਰਿਕੁਆਇਰਡ એનર્ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ ਉਹ T2G ऑर्बिटल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ EG ऑर्बिटल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। एज ए रिजल्ट की होगा कि अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स की जिहड़ी गिनती है वो ज़्यादा हो जाएगी तो इहो जे कंपलैक्सिस नूं असीं कहीदा है हाई स्पिन कंपलैक्सिस। हाई स्पिन कंपलैक्सिस दे विच अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स की गिनती ज़्यादा होंदी। इफ डेल्टा नॉट इज लैस दैन P, complex has maximum number of unpaired electrons because electrons get shifted from T2G to EG orbitals instead of pairing। दूसरी तरह के जोड़े कॉम्पलैक्स होंगे है वो होंगे लो स्पिन कॉम्पलैक्स। ये उदों बनते हैं जदों कि डेल्टा जीरो की जी वैल्यू होंगी है वो P दे नालों बहुत ज़्यादा होंगी है। इस करके जे इलैक्ट्रॉन्स नूं असी T2G तो EG विच शिफ्ट करिए तो सानू ज़्यादा एनर्जी की लोड़ होंदी है। जो उत्थे पेयर कर लैन फिर सानू घट एनर्जी की लोड़ होंदी है। इस करके जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स है वो EG ऑर्बिटल विच शिफ्ट होने की बजाय जिहड़ा T2G ऑर्बिटल्स है उहदे विच ही पेयर कर लैंदे आ। इहदा प्रभाव की पऊगा कि जिहड़े कंपलैक्स होणगे उन्हां कोले अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स घट होणगे। इस करके जिहड़े इहो जिहे कंपलैक्सिस होंदे आ फॉर विच डेल्टा जीरो इज ग्रेटर दैन P ते अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स मिनिमम हो। कंपलैक्स हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स, उन्होंने असी कहीदा है लो स्पिन कंपलैक्सिस। आओ यही गल असी एक उदाहरण नाल समझिए। साडे कोल दो कंपलैक्सिस ने, एक है FeH2O6 ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है FeCN6 ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज। जिहड़ा H2O लीगेंड है एक वीक फील्ड लीगेंड है। इस करके एक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करवाऊगा तां घट करवा पाऊगा, जिहदे नाल कि डेल्टा जीरो की जिहड़ी वैल्यू है वो बहुत घट होगी। इस करके इलैक्ट्रॉन्स T2G ऑर्बिटल्स दे विच पेयर करन दी बजाय EG ऑर्बिटल्स दे विच चले जांदी है। उस नाल उन्हां दे अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स की जिहड़ी गिनती है वो वध जाएगी तो कंपलैक्स जिहड़ा हैगा वो हाई स्पिन कंपलैक्स बन जाएगा। जिवें इत्थे असीं दिखाया FeH2O6 3 पॉजिटिव दे विच T2G ऑर्बिटल्स दे विच 3 अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स है, EG ऑर्बिटल दे विच 2 अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स है। सो टोटल अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन 5। अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स की गिनती ज़्यादा होने कारण एक हाई स्पिन कॉम्पलैक्स है। इसे ही तरह जे असी देखिए FeCN6 3 नैगेटिव, उहदे विच जिहड़ा लीगेंड है CN नैगेटिव वो एक स्ट्रोंग फील्ड लीगेंड है। स्ट्रोंग फील्ड लीगेंड होने दे नाल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगी। इस करके इलैक्ट्रॉन नूं T2G तो EG ऑर्बिटल विच शिफ्ट होने लई जिहड़ी एनर्जी चाहिदी है वो ज़्यादा होगी, पेयर करन लई एनर्जी घट चाहिदी है। इस करके जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स है वो थल्ले पेयर कर लैंदे आ। इस नाल प्रभाव ये पैंदा है कि अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स की गिनती घट जाती है। जे अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स की गिनती घट जाए तो फिर जिहड़ा वो कंपलैक्स है
वो लो स्पिन कंपलैक्स होंदा है। जिस तरह आपां देखिया कि इत्थे FeCN6 3 नैगेटिव दे विच सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन है, इस करके ये एक लो स्पिन कंपलैक्स है। इसे ही तरह दूसरी उदाहरण नाल असी ये गल समझिए, जे अपने कोले FeH2O6 2 पॉजिटिव एक कंपलैक्स है, FeCN6 4 नैगेटिव दूसरा कंपलैक्स है, तो जिवें हुणे असी पिछे पढ़िया FeH2O6 दे विच जिहड़ा वाटर है वो वीक फील्ड लिगेंड होने करके ये हाई स्पिन कंपलैक्स बनता है। इसे ही तरह जिहड़ा FeCN6 4 नैगेटिव है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ Cn ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਲਿਗੈਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स T2g ऑर्बिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਅਰ ਅਪ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਕਿੰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਕੋਲੇ सारे इलैक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंदे आ, दे आर डायमैगनैटिक इन नेचर, ते जिहड़े सबस्टांसिस कोले अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स होंदे आ, दे आर पैरामैगनैटिक इन नेचर। सो जे आपां इत्थे देखिए FeH2O6 2 पॉजिटिव कोले तां अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन हैगे आ, FeCN6 4 नैगेटिव कोले अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन नहीं हैगे। देयरफॉर जिहड़ा FeCN6 4 नैगेटिव है एक डायमैगनैटिक कंपलैक्स होगा। इसे ही तरह जिहड़ा FeH2O6 2 पॉजिटिव है यह एक पैरामैगनैटिक कंपलैक्स होगा। हुण आपां गौर करांगे कि जिहड़ी ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ये किहड़ियां-किहड़ियां गल्लां ते डिपेंड करती है। सब तो पहली गल जिहड़ी इसनूं प्रभावित करती है वो है नेचर ऑफ लीगेंड। जे वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, जो एक वीक फील्ड लीगेंड है फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग घट होगी। दूजा ये डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैटल आयन। जिन्नी मैटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उन्ना ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, जिन्नी घट होगी उन्नी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग घट होगी। इसे ही तरह नेचर ऑफ द मैटल आयन, जिहड़ा मैटल आयन है वो पीरियोडिक टेबल के किहड़े हिस्से नूं बिलोंग करता है उस पर भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है जिहड़ी आधारित होती है। जिस तरह असी देखिया कि जिहड़े 3D ते 4D ऑर्बिटल्स वाले ट्रांजिशन मैटल्स हुंदे आ उन्हां विच इहदी वैल्यू ज़्यादा होंदी है। इसे ही तरह क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का असर जिहड़े कंपलैक्सिस दे रंग हुंदे आ कि उन्हां दे जिहड़ा कलर्ड कंपाउंड्स हुंदे आ उन्हां ते भी आधारित हुंदी है। जिवें कि साडे कोले कंपलैक्स है TiH2O6 उपर 3 पॉजिटिव। इस विच की हुंदा है कि जदों सफेद प्रकाश इस कंपलैक्स ते पैंदा है तो जिहड़ा इलैक्ट्रॉन हुंदा है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके T2g ऑर्बिटल तो EG ऑर्बिटल दे विच चला जाता है। जे तुहानूं याद होवे बेटा जदों इलैक्ट्रॉन एक डी ऑर्बिटल तो दूसरे डी ऑर्बिटल विच जाता है तो जिहड़ा प्रभाव हुंदा है इसनूं असीं कहीदा है डी ट्रांजिशन। जदों यह डी ट्रांजिशन हुंदी है तो सफेद प्रकाश के विचों कुछ एक वेवलेंथ्स जिहड़ियां हुंदियां वो एब्जॉर्ब हो जांदियां, जिहड़ियां दूजियां वो ट्रांसमिट हो जांदियां। जिवें हुण इस कंपलैक्स के केस दे विच जिहड़ी ग्रीन ते येलो रंग की लाइट हुंदी है वो एब्जॉर्ब हो जाती है तो जिहड़ी ब्लू ते रैड रंग की लाइट हुंदी है वो एमिट हो जाती है, जिहदे करके कि जिहड़ा ये कंपलैक्स है TiH2O6 3 पॉजिटिव उसका रंग पर्पल होता है। सो प्यारे बच्चों क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बारे इन्नी जानकारी प्राप्त करने तो बाद आओ असी आपदे ज्ञान की परख करिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस करके। जिवें इत्थे अपने कोलों पूछा गया है कि CO C2O4 थ्राइस 3 नैगेटिव एक डायमैगनैटिक कंपलैक्स क्यों हुंदा है। जिवें मैं हुणे तुहानूं दस्सिया डायमैगनैटिक कंपलैक्स वो हुंदा है
जिस कोले कि सारे इलैक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे आ। इसका मतलब ये होया कि जिहड़ा पेयरिंग वाली एनर्जी है वो घट होगी तो जिहड़ी डेल्टा जीरो वाली एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। इस करके इसका उत्तर है C2O4 नैगेटिव इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड जिहदे करके कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होंदी है तो उहदे विच इलैक्ट्रॉन्स पेयर हो जाते हैं। पेयर होने के नाल जिहड़ा उहदा मैगनैटिक नेचर है वो डायमैगनैटिक बन जाता है। आओ हुण आपां अगला प्रश्न करिए। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन लीगेंड्स इज। आपां हुणे कीती स्टीरियोकैमिकल सीरीज और स्पैक्ट्रोकैमिकल सीरीज, उस दे विच आपां लीगेंड्स नूं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ के अनुसार ही अरेंज किया होया सी। जदों तुसीं वो वाली सीरीज तुहानूं याद होगी तो आपां पावांगे कि इसका आंसर है थर्ड, Cl नेगेटिव लैस दैन F नेगेटिव लैस दैन H2O लैस दैन NH3 लैस दैन Cn नेगेटिव लैस दैन CO। आओ हुण आपां अगला प्रश्न करिए। The magnitude of CFSE can be related to configuration of d orbitals in a coordination entity S कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के अनुसार जिहड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंदा है उस दी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ते की प्रभाव पैंदा है। असीं देखांगे कि जिहड़े ये उत्तर दिते ने उन्हां चों सही उत्तर है फस्ट पार्ट, क्योंकि जे डेल्टा जीरो का मुल P नालों घट होवेगा तो फिर जिहड़े इलैक्ट्रॉन है वो T2G तो EG ऑर्बिटल दे विच शिफ्ट हो जाएंगे। जदों T2G तो EG ऑर्बिटल विच इलैक्ट्रॉन शिफ्ट होंदे आ तो उत्थे अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंदे हैं। इस करके जिहड़ा कॉम्पलैक्स बनता है वो हाई स्पिन कॉम्पलैक्स बनता है। If delta 0 is less than P, the configuration is T2G3 EG1. Therefore, it is a weak field ligand and high spin complex. आओ हुण असीं अगला प्रश्न देखिए। लो स्पिन टेट्राहीड्रल कॉम्पलैक्सिस आर नॉट फॉर्म। इत्थे मेन तुसीं देखना है नॉट, वो लो स्पिन कॉम्पलैक्सिस बनन बारे गल नहीं कर रहे, लो स्पिन कॉम्पलैक्सिस ना बनन बारे गल कर रहे हैं। लो स्पिन कॉम्पलैक्सिस ना बनन का कारण है कि जिहड़ी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो पेयरिंग की एनर्जी नालों घट है, क्योंकि जे किते वो ज़्यादा हुंदी तो फिर लो स्पिन कॉम्पलैक्स बन जाने सी। Therefore, the answer is 1. For tetrahedral complexes, the CFSE is lower than pairing energy. आओ हुण असीं अगला प्रश्न देखिए। A substance appears colored because, ये आपां हुणे कीता कि जदों सफेद प्रकाश किसी पदार्थ ते पैंदा है तो उस विचों कुछ एक रंगां दी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, बाकी ट्रांसमिट हो जाती है, जिस करके कि कोई भी पदार्थ जोड़ा है वो सानू रंगीन दिखता है। Therefore, answer is 1. It absorbs light at specific wavelength in visible part and reflects rest of the wavelengths. सो प्यारे बच्चों, आस है कि तुहानू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का यह टॉपिक समझ आया होगा तो तुसी इसनू अगे किते भी लागू कर सको। धन्यवाद।